जो हमारी पार्टी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, हिंदुस्तान का गौरव, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में पूरा अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया और इस देश की आम जनमानस का दिल जीतने का काम किया, आदरणीय हमारी बेटी विनेश फोगाट, श्री बजरंग पूनिया, दोनों ने ओलंपिक में जिस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, पहले बजरंग जी ने और अब फिलहाल के जो अभी फ्रांस में हुए, जिस तरह से विनेश हमारी बेटी ने दुनिया की जो सबसे बड़ी पहलवान को चित्त करने का काम किया, उसने पूरे हिंदुस्तान की जनता का दिल जीतने का काम किया। और हम सभी हरियाणा वासियों को तो बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे हरियाणा से ऐसी हमारी बेटी ने जन्म लिया, हमारी प्रतिभावान जो हमारी देश की जो खेल के स्तर पर जो ऊंचा बढ़ाने का काम किया, आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं। अभी वो खेल के अखाड़े में थी और राजनीति के अखाड़े में उतर रही हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे महासचिव संगठन से आग्रह करूंगा कि एआईसीसी की तरफ से वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद। Today is the big day of Indian National Congress. A proudful moment for all of us to join Vinesh Phogat ji and Bajrang Punia ji inside the platform of Indian National Congress. Vinesh ji, hailing a family from wrestlers, when she was 9 years old, her father was shot dead in front of the house of a relative of her family. Can you imagine that? When a girl child was 9 years old, her own father shot dead by nearby the family premises. But her conscious mind brought her here. Her braveness brought her here. Her courage brought her here. Becoming a 3-time Olympian, having completed in 3 different weight classes, 48 kg in 2016, 53 kg in 2020 and 50 kg in 2024. In 2024, she became the first Indian woman wrestler to have reached finals at the Olympic Games. However, we know, most disappointed news, India heard that point of time she had been disqualified. In the same games, she had also become the first international wrestler to defeat the then reigning Olympic champion Yu Sasaki. After her disqualification, she announced retirement. One of the very sad news again, after her father's death, murder, second sad news faced by Vinesh ji. That is not only for Vinesh ji, for entire country, the retirement from Olympics field. You know her journey, completely her journey, you know that. The moment she led along with Bajrang Punia ji and other wrestlers, they took up their cases of self-respect, decency in their field, which is totally denied by the Wrestlers Association of India.
entire country stood with him, her, and these people. We, Indian National Congress, I proudly say that Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Mallikarjuna Kharge ji, all senior leaders and all leaders of India Alliance also stood with her, stood with them for their genuine causes, for fighting against the injustice which happened to them. Not only they stood for their field, they fought for the Kisan of this country. You can witness that. When Kisan agitation happened, they are there with the Kisans. They fought for Agniveer. When they are in great difficulties, this is the social commitment of these great players, great resolutes. That is why Indian National Congress is very proud to accept them in this party. Leaders will come through movements. These two people came through a biggest movement in this country. Now somebody is criticizing, I saw that these are all the conspiracy, Congress conspiracy. So many athletes are in different parties. So many Olympians are also in different parties. If that also a part of conspiracy. Now we are very proud that I am again telling these big stalwarts of Indian sports history led a movement. They know that which party has to trust through their experience. They completely know about that. Therefore, they chosen Indian National Congress as their party. This is what happened. Bajrang Punia ji, I don't want to introduce much because everybody know Bajrang Punia ji, an Indian freestyle wrestler who complete in the 65 kg weight category at the 2020 Tokyo Olympics. Punia won bronze medal there. Prominently advocated farmers' course everywhere. Now he requested, what was the request from himself? I am very much happy to say that. Our Congress President and Rahul Gandhi was also very much happy by hearing a request. He told, I need to have a platform in the party to work for the farmers of this country. Actually, it is a very proudful moment for us. He protested against the 3 farm laws and protested for Agniveer scheme. Punia is the only Indian wrestler to win 4 medals at the World Wrestling Championship. He won a gold medal at the Asian Wrestling Championship held in 2017 and 29. He also won gold medal in 2018, 2022 Commonwealth Games and 2080 Asian Games. He received Arjuna Award also. He is an Arjuna Award. Therefore, we are very happy. Surprisingly, I have to show one notice to you, which Vinish got today. She resigned her job today itself. After resigning, she got a WhatsApp message from railway authorities. Shock cause notice. What was the reason? Yesterday, you people in their television media and newspapers printed their photo along with the Rahul Gandhi, leader of opposition of this country. Is it a crime to stand with the leader of opposition of this country? They didn't join. They didn't talk to anybody. The railway is running behind rumors. They are telling that there are news, there are reports that you are going to contest the election. Therefore, you cannot contest the election while you are an employee. Therefore, give an explanation. They didn't told anything to anybody. You people know that.
They only done a crime which they are mentioning. They met leader of opposition Rahul Gandhi. They are not leaving her, or they are not leaving her. What is they are thinking? The railway authorities? Are they want to penalize again? Enough is done. Now also you are not leaving. He also, I think you also got it. Bajrang also got it. Enough is done. Then also they don't want to leave it. I am gently reminding the authorities of the railway, now the country will be with these two players, entire country. Don't play politics on all these issues. They already resigned from the job. Do the formalities quickly and relieve them. Once again, with great pride, we are Honorable Congress President, under the directions of Congress President and LOP. We are very happy to induct them in Indian National Congress. Thank you very much. थैंक यू वेणुगोपाल जी। अब स्वागत का सिलसिला समाप्त करने के बाद अधिकृत रूप से बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगाट जी को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आग्रह करूंगा वेणुगोपाल जी से, हमारे महासचिव प्रभारी दीपक बावरिया जी से और उदयभान जी से कि वो उनका स्वागत कर। कांग्रेस में शामिल हुए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं दोनों बड़े चेहरे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में ज्वाइन की है इन्होंने कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हुए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। ये तस्वीरें आप देखिए, मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया भी मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल यहाँ पर मौजूद हैं। इन तीनों बड़े नेताओं की मौजूदगी में ये दोनों पहलवान, दोनों खिलाड़ी कांग्रेस में शामिल हुए। और ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में ये दोनों खिलाड़ी पहुंचे। अब मैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जी से आग्रह करूंगा, आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो कांग्रेस में शामिल हुए हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस में शामिल हुए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ।
मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था, और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दिनेश जी। मैं बजरंग पुनिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयपान जी का, पवन खेड़ा जी का, और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ
जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला जो बेटियां देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद बजरंग जी। अब कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे, सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बैठकें हैं, वेणुगोपाल जी को भी जाना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हुए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस को मजबूत करने की बात कहते हुए नजर आए दोनों। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने ये कहा है कि कांग्रेस में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि पूरे वक्त में कांग्रेस साथ खड़ी रही, उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बुरे वक्त में पता चलता है कौन अपना है। जो हमने फेस किया है, हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। ये बातें भी विनेश फोगाट कहती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी जारी है, जिंदगी की जंग भी जीतेंगे। ये बड़ी खबर। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग पूनिया भी यही कहते हुए नजर आए कि उन्होंने ये कहा है कि हमारी आलोचना हो रही है, बीजेपी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। हमने बीजेपी की महिला सांसदों को पत्र भी भेजे थे। हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, ये बात कहते हुए नजर आए। कांग्रेस में शामिल हो गए हैं आधिकारिक रूप से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। ये दोनों चेहरे अब कांग्रेस में शामिल हुए। कुश्ती का दंगल छोड़ अब सियासी दंगल में एंट्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों बड़े चेहरे अब कांग्रेस की तरफ से सियासी दंगल में दांव पेंच लगाते हुए नजर आएंगे। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती के ये दोनों सितारे अब कांग्रेस के पक्ष में और राजनीतिक दंगल में अब ये दांव पेंच लगाते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से इन्होंने आज साफ कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधे सीधे हमलावर नजर आए दोनों। खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। कनिका को लेने उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। तो विनेश जी और बजरंग जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी की टिकटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? और क्या विनेश जी आप अपनी चुनावी पारी की शुरुआत इस चुनाव से करेंगी? अब कांग्रेस में आई है तो फिर और किसी टिकट पे थोड़ा ही जाएंगे। कांग्रेस पार्टी टिकट सीईसी में डिसाइड करना चाहिए। आ रहा है माइक वहां। पवन जी एक सवाल इधर से। पवन जी आ रहा है वहां भी आ रहा है। अरे पूछ रहे हो विनेश जी, 2 सीट आगे जो कयास लग रहे हैं वो 2 सीटों पर लग रहे हैं, एक जुलाना और एक चरखी दादरी। विनेश जी अगर इन 2 सीटों में से चयन, ये सवाल आपको शाम को कल जब भी टिकट्स आएंगी तब कर लीजिएगा। विनेश जी मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? मायका या ससुराल दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है। दोनों एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो बड़ी बातें कहते हुए नजर आई हैं विनेश फोगाट, और जिस तरीके से उन्होंने अंत में जवाब दिया कि एक मेरी जन्मभूमि और एक मेरी कर्म भूमि, अपने मायका और ससुराल को लेकर के चुनाव लड़ने को लेकर के उनका यह बयान था। यानी कि संकेत साफ है कि चुनावी मैदान में भी नजर आएंगी विनेश फोगाट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। इसी बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो जल्दी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और आज ये आधिकारिक रूप से तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, आधिकारिक रूप से दोनों खिलाड़ियों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस का हाथ इन्होंने थामा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अब सियासी दंगल में नजर आएंगे। दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है और आज दिखाया खुल करके। हालांकि अब तक जब तक
पहलवानों का आंदोलन चल रहा था तब तक ये दोनों कहते रहे कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और अब खुल करके बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख जो है वो दिखाते हुए नजर आए दोनों ही पहलवान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, ये दोनों बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, आगे क्या कुछ रहने वाला है? इस दौरान काफी आक्रामक नजर आए बीजेपी के खिलाफ दोनों ही पहलवान। अपराजिता, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जितेंद्र, देखिए बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि आक्रामक हुए हैं दोनों खिलाड़ी, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया और जिन्होंने उन्हें ज्वाइन भी करवाया है, केसी वेणुगोपाल की अगर बात करूं तो बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया, एक काफी गौरव का ये विषय है उनके लिए कि ये दोनों खिलाड़ी शामिल हुए हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जिस तरीके की उनकी जर्नी रही है, साथ ही जिस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों ने ये चीजें कही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से उन्हें डाउनफॉल करने की कोशिश पूरी तरीके से की थी, आईटी सेल ने उनके लिए काफी राहें उनकी मुश्किल करने की कोशिश की थी कि विनेश फोगाट अगर नेशनल लेवल पे खेलना नहीं चाहती, ट्रायल्स नहीं लेना चाहती है, मैंने वो सभी जो परेशानी है उन सभी को जूझते हुए, सभी से लड़ते हुए मैं आगे तक पहुंची हूँ। और साथ ही ओलंपिक को लेकर भी उन्होंने काफी कहा कि काफी दिल के करीब है वो चीजें मेरे लिए, और जिस तरीके से हालांकि परमेश्वर को कुछ और मंजूर था मेरे लिए, चाहते हैं परमात्मा चाहते हैं कि मैं देश की सेवा करूं, और जो आवाज मेरी जब मैं बहुत परेशानी में थी, हालांकि कांग्रेस ने मेरा साथ दिया उस वक्त और बीजेपी ने साथ नहीं दिया, और बीजेपी अलावा हर दल ने मेरा साथ दिया है, और मैं चाहूंगी कि मैं हर उसकी आवाज बनूं जो अपने आप को अकेला महसूस करती है, मैं हर उस इंसान की साथ दूंगी और उनके साथ रहूंगी। साथ ही बजरंग पूनिया ने भी कहा कि जिस तरीके से जो मैंने सभी बीजेपी को लेकर काफी आक्रामक होते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी के सभी महिला सांसदों को हमने लेटर भेजा था, उन्हें बुलाया गया था कि जिस तरीके से हमारे साथ जो लड़कियों के साथ जो चीजें हो रही थी उसको लेकर के हमारे कोई आए नहीं थे, तो काफी आक्रामक वो नजर आए। हालांकि बहरहाल अगर मैं ज्वाइनिंग को छोड़ करके अगर उनकी आगे की बात करती हूँ तो जिस तरीके से जब सवाल किया गया कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ती हुई इसी विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे, जिसको लेकर के उस सवाल को कहीं ना कहीं टाल दिया गया है कि इसका जो फैसला है वो सीईसी की बैठक होगा, यानी अभी भी चर्चा जारी है और वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उन दोनों को चुनावी अखाड़े में उतारा जाएगा या केवल एक के लिए वो अखाड़ा खुला है, पहली चीज। दूसरी चीज हो जाती है कि विनेश फोगाट की जब सवाल किया गया कि मायका या फिर ससुरा, यानी चरखी दादरी या फिर जिलाना, तो हालांकि उन्होंने हंसकर कहा कि दोनों ही मेरे दिल से बहुत करीब है, यानी दोनों ऑप्शन अभी खुले हुए हैं, और जो आखिरी फैसला वो केंद्र चुनाव समिति की बैठक में किया जाएगा, यानी पॉसिबिलिटी देखी जाएगी सबसे ज्यादा जीतने की संभावना किस सीट से उनकी है, और वहीं से उन्हें टिकट देती हुई कांग्रेस नजर आ सकती है। आखिरी फैसला सीईसी की बैठक में होने वाली है। चर्चाएं अभी दोनों जो खिलाड़ियों को लेकर के जो नवी दिल्ली कांग्रेस में शामिल हुए हैं दोनों को लेकर के अभी हम कह सकते अभी ऑन है, और सीईसी की बैठक में आखिरी फैसला इन दोनों पर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, दोनों पर आखिरी फैसला सीसी की बैठक में लिया जाना है, लेकिन विनेश फोगाट को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कि वो चुनाव में नजर आएंगी। हालांकि अभी सीट को लेकर के क्लियरिटी नहीं, लेकिन अगर बात बजरंग पूनिया की करें तो बजरंग पूनिया को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं हैं कांग्रेस पार्टी में सीईसी की बैठक में? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो दो चर्चाएं चल रही है। बजरंग पूनिया की अगर हम बात करते हैं उनका तो दो चर्चाएं चल रही है। पहली चर्चा ये चल रही है कि उन्हें भी टिकट दी जा सकती है। कौन सी सीट? तो वो है राई और बादली, तो वो सीट है जहां पर चर्चा चल रही है कि बजरंग पूनिया को टिकट देती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस। वहीं एक और दूसरी भी चर्चा चल रही है कि संभव है कि केवल विनेश फोगाट को ही मौका दिया जाएगा इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का। वहीं बजरंग पूनिया इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर ना भी आ सकते हैं, वहीं संगठन के काम करते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत करने के लिए यानी कैंपेनिंग या फिर कोई और अहम जिम्मेदारी कांग्रेस उन्हें देती हुई नजर आ सकती है। वहीं देखिए, अब स्पष्ट तरीके से जो चीजें होंगी, जिस तरीके से हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है कि इन सभी चीजों पर बिल्कुल अपराजिता, आप बनी रहिएगा हमारे साथ, आप बनी रहिए। इसी बीच हमारे साथ रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? ये दोनों पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अब दोनों कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इनके चुनाव लड़ने को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही?
सर खिलाड़ियों के लिए हमेशा सेंटीमेंट हम जानते हैं कि हरियाणा में बिल्कुल, देखिए विनेश और बजरंग आज कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल हो गए हैं और लगातार ये कयास लगाए रहे थे जल्दी कांग्रेस में शामिल होंगे और अपनी जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदयबान इस वक्त हैं। सर विनेश फोगाट शामिल हुए हैं, सर कैसे देखते हैं सर विनेश फोगाट शामिल हुए? बहुत उनका स्वागत है। और चुनाव की अगर बात की जाए सर, टिकटों को लेकर कोई फैसला हुआ सर? बीजेपी को टिकट दे, ये भाई साहब ये पर्चा धरना था मेरा, जरूर देना टिकट। एक साइड हो जाए, एक साइड में विधायक जी मछुआड़ में। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए विनेश और बजरंग की तरफ से आज पार्टी जो है विधिवत रूप से ज्वाइन कर ली गई है और वो चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले समय में। विनेश की अगर बात की जाए तो विनेश जुलाना और बाडरा सीट से जो है वो कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो चल रहा है। अब देखना होगा कि सीईसी की बैठक में किस प्रकार से उनके नाम को लेकर फैसला किया जाता है। आज विधिवत रूप से विनेश फोगाट जो है कांग्रेस में शामिल हो गई है। जी बिल्कुल रवि, दोनों कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जिस तरह से हमने देखा जब वो मंच पर बात कर रहे थे पार्टी में शामिल होने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आक्रामक रुख आज खुल करके दोनों ने दिखाया। जिस तरह से साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि जब महिलाओं को घसीटा जा रहा था, जो महिला पहलवान आंदोलन कर रही थी जंतर मंतर पर, जब उन्हें घसीटा जा रहा था तो उनके घसीटने वालों में अगर किसी का साथ, उनका साथ अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, बाकी पूरा अपोजिशन हमारे साथ था। इस तरह की बातें वो यहां पर कहते हुए नजर आए। यानी कि अब संकेत दोनों की तरफ से साफ साफ दे दिए गए हैं कि वो अब खुल करके सियासी पारी खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सियासी पारी खेलते हुए नजर आएंगे और आने वाले चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी को जमकर घेरते हुए नजर आएंगे। देखिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था, तब जिस प्रकार से पहलवानों को वहां से उठाया गया, उस बात का जिक्र करते हुए यहाँ विनेश फोगाट कहते हुए नजर आई कि जब हमें घसीटा जा रहा था, देश की बेटियों को घसीटा जा रहा था, देश की बेटियों के न्याय के लिए जब वो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त कोई भी उनका साथ देने के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने उनका खुल करके साथ दिया और बिना मांगे साथ दिया। वहीं बीजेपी के लीडर्स की तरफ से, बीजेपी लीडर्स के लिए उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी के जो तमाम लीडर्स थे, जो महिला सांसद थी, महिला जो लीडर्स थी, उनको बाकायदा चिट्ठी लिखी गई, आप हमारे समर्थन में आइए, आप हमारे लिए सपोर्ट में आइए। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जब तमाम चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं को महिलाओं की मदद करनी चाहिए। तो उस वक्त भी बीजेपी की तमाम जो महिला लीडर थे उनमें से कोई भी जो उनका साथ देने के लिए नहीं आया। और अब उनकी तरफ से ये भी ऐलान किया गया है, जो 100 ग्राम का जो वेट उनका बढ़ा था और उसको लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया था इसका जवाब भी दूंगी, इसलिए थोड़ा सा पहले मैं मेंटली प्रिपेयर होना चाहती हूँ। मेंटली प्रिपेयर होने की इस सवाल के लिए जरूरत है, इस जवाब के लिए जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वो उसको कहती नजर आई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस में रह करके जो है तमाम जो महिला खिलाड़ी हैं उनकी लड़ाई लड़ने की बात भी यहाँ कहती हुई नजर आई। यानी कि जमकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आई हैं और जिस प्रकार का उनका रुख था, जिस प्रकार का उनका आज रवैया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तमाम सवालों को जवाब देती हुई नजर आई और बीजेपी को पर जमकर निशाना उनकी तरफ से साधा गया है। जी बिल्कुल रवि, विनेश फोगाट को लेकर के 2 सीटों पर चर्चाएं चल रही हैं कि वो 2 सीटों में से किसी एक सीट पर चुनावी मैदान में नजर आ सकती हैं। क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं कांग्रेस नेताओं में, किस तरह की बातें चल रही हैं, कौन सी सीट से विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए 2 नाम कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। बाडरा की बात चल रही है और इसके साथ साथ बात चल रही है जुलाना सीट को लेकर। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो वो कहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया इसका जवाब जो है केंद्रीय नेतृत्व देगा, कांग्रेस के तमाम जो लीडरशिप है वो देगी। एक उनकी कर्म भूमि है, एक उनकी जन्मभूमि भी है, तो इतना कहकर उन्होंने अपने जवाब को जो है समाप्त कर दिया। लेकिन इन्हीं दोनों जगह से कहीं ना कहीं उनका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। हालांकि बैठक चल रही है, बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी जगह उपयुक्त जो है विनेश फोगाट के लिए रहेगी, कौन सी जगह से विनेश फोगाट को चुनाव लड़ाया जाए, तो ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की सब कमेटी की जो बैठक चल रही है उसमें कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम चीजें जो है वो फाइनल की जाएंगी। फिलहाल की अगर बात की जाए, चुनाव लड़ते हुए जरूर नजर आएंगे दोनों खिलाड़ी। बिल्कुल बजरंग पुनिया को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि वो सोनीपत सीट और या फिर बातली सीट में से किसी एक सीट पर डिमांड कर रहे थे, लेकिन दोनों पर ही कांग्रेस की तरफ से मना किया जा रहा है। राय को लेकर के जरूर उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है इस मामले में?
बिल्कुल, देखिए बादली और राय का नाम कहीं ना कहीं उनके नाम के आगे चल रहा है, और कहाँ से टिकट देगा इसका भी चुनाव जो है जो सब कमेटी की बैठक फिलहाल चल रही है, उसके बाद जो सीईसी की बैठक होनी है, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जब वो रिपोर्ट पेश की जाएगी सब कमेटी की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की, तो उनमें दोनों खिलाड़ियों के नाम को लेकर चर्चा जरूर की जाएगी, और कहाँ से चुनाव लड़ाया जाए ये देखने वाली बात होगी। बादली की अगर बात की जाए तो कुलदीप वत्स वहां से चुनाव लड़ते हैं, दोनों ही बादली की अगर बात की जाए तो कुलदीप वत्स वहां से चुनाव लड़ते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास है। वहीं सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत से भी कहीं ना कहीं सुरेंद्र पवार जो है वो लड़ते हैं, वो भी उनके काफी नजदीकी बताए जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोनीपत और बादली सीट को छोड़कर राय की सीट जो बचती है उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है, और बजरंग पुनिया जो है राय से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तय किया जाएगा कब सूची जारी की जाएगी, सूची का इंतजार करना होगा कि दोनों खिलाड़ी कहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन विधिवत रूप से अब राजनीतिक अखाड़े में दोनों पहलवान जो है वो कूद चुके हैं। बिल्कुल रवि, क्योंकि अभी तक राजनीतिक अखाड़े में पूरी तरह से कूदे नहीं थे दोनों खिलाड़ी, बीजेपी के खिलाफ इतने ज्यादा आक्रामक नजर नहीं आ रहे थे, उसके बावजूद भी बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं इनकी आवाज बुलंद मानी जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस में शामिल हो गए आधिकारिक रूप से, बीजेपी के खिलाफ दोनों खुलकर के मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा और कितना प्रभावित हरियाणा के चुनाव को ये दोनों खिलाड़ी करते हुए नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, देखिए हरियाणा में हरियाणा खेलों का हब है, और तमाम खिलाड़ी की इज्जत जो है वो पूरे देश के साथ साथ हरियाणा वासी बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, उनको सम्मान से देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं पलकों पर बिठाते हैं। जब भी कोई खिलाड़ी जो इनाम जीत करके लाता है, कोई मेडल जीत करके लाता है, तो उनकी फैन फॉलोइंग की अगर बात की जाए तो पूरा हरियाणा ऐसे खिलाड़ियों का फैन होता है जो देश के लिए कहीं ना कहीं सम्मान जीतने का काम करता है, देश के लिए मेडल जीतने का काम करता है। उसी कड़ी में विनेश फोगाट की बात करें या बजरंग पुनिया की बात करें, दोनों ही खिलाड़ी सम्मानीय हैं, देश के बेटा और बेटी हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के तमाम जो लोग हैं उनके फैन हैं। आपने एक नज़ारा जब विनेश फोगाट ओलंपिक से वापस आई थी, जब उनको कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस दौरान भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर उनका गांव जो बलाली है बाडड़ा में, वहां तक पहुंचने के लिए करीब 14 से 15 घंटे का जो सफर है वो लगा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जगह जगह पर उनके कार्यक्रम किए गए थे, सम्मान जो उनका किया गया था, रास्ते में जगह जगह पर रोका गया था, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करनी पड़ी। तो देर रात तक जो है विनेश फोगाट करीब 1 बजे के आसपास अपने घर पहुंची थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक इसी प्रकार का सम्मान जो है पूरे प्रदेश में उनके खिलाड़ियों को लेकर देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर जब इतने बड़े खिलाड़ी किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन के साथ जुड़ते हैं तो उसको निश्चित तौर पर बड़ा फायदा होता है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा रवि। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब दोनों ही खिलाड़ी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए, और अब सियासी दांवपेच देखने होंगे कि किस तरह से इनके असर डालते हैं और क्या कुछ असर डालते हैं, क्योंकि कुश्ती में इन्होंने जो किया देश के लिए, जिस तरह से मेडल जीते, देश का नाम ऊंचा किया हमेशा, और अब कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हो गए हैं। देखना होगा कि इनकी सियासी पारी किस तरह से रहेगी, क्या कुछ इनका सियासी सफर अब रहेगा, क्या चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे दोनों खिलाड़ी या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।